Hi guys, fantastic. Let's today's training is going to be amazing. As usual, we have some of the best trainers which are there, and today is again going to be fantastic. So let me first pin my video. Yeah. Hi guys. As we know, we have forever a lot of different type of people joined us from different businesses, from different setup. So the idea behind calling all these people, because you might be knowing somebody who's a garment manufacturer, and in this time the business is fat, or you might be knowing somebody who owns a restaurant, or you might be knowing somebody who's a DJ. So somebody who's maybe a Zomato boy. So the idea behind calling is to understand how and why most of these people have joined forever from different fields. It's not necessarily has to be with our company. In different fields, from whichever company they are, whatever business they are doing, why they can even do it as part-time or full-time. So I will not take much time. I have made Jayesh, and I like to introduce him today. He's our guest speaker, and so I'll first get him on screen. Okay, so Jayesh, hi, welcome. Hi, welcome. Yeah, thank you, Simon. Thank you for giving me such a great opportunity to present this business to the teams and who want to know something or who want to do something in life. Okay. Fantastic. I love your background, especially with Rex photo behind. Yeah. It's amazing because Rex is such a fantastic personality, which I've met him so many times. And even he sat in my car when he had come to India at the Maratha Sheraton. Yeah. So, Jayesh, I think we'll start because we don't want to wait. We are already on time. So, just want to know some basic things. You had your garment business. You are a garment manufacturer. And I'm sure as a garment manufacturer, you might be having a lot of staff, factory and all. So what made you change from a, as what people say, fantastic business, what people say, okay, fantastic business, what made you shift to forever? Okay. See, I'll speak in Hindi. Is that okay? Yeah, perfect. You can speak. आप हिंदी में भी बोल सकते हैं. Sorry, मैं question भी हिंदी में पूछूंगा. No problem. नहीं, मैं question because I think some of the audience are also Hindi. So my Hindi is गड़बड़. So sorry for that. आपने आपका एक खुद का मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था जो कपड़े मैन्युफैक्चर करता था, अलग अलग कपड़े मैन्युफैक्चर करता था. तो वो बिजनेस जो पब्लिक बोलती है बहुत अच्छा है, वो छोड़ के आप एक फॉरएवर के बिजनेस में क्यों आए? सर देखिए, ऐसा है ना कि मैं खुद 25 साल से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में था. इट वाज मेरे फादर का बिजनेस था, उसको मैंने टेक ओवर किया. और मुझे भी जब ही वो शुरू किया और ज्वाइन किया तो मुझे भी ऐसा लगता था कि सबसे बेस्ट बिजनेस है ये. सब कुछ ठीक चल रहा था और एवरीथिंग वाज ओके, सब फाइन चल रहा था. लेकिन इन अराउंड 2005 से सब थोड़े से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए. क्या है कि काम करो लेकिन पेमेंट नहीं आता था, सबसे पहली बात. और हमारे ही पैसे के लिए हमें भीख मांगनी पड़ती थी. ऐसा लिटरली मैं तो ये वर्ड यूज करूंगा कि एट टाइम्स ऐसा सिचुएशन आया है कि आउटस्टैंडिंग 5 लाख होने के बावजूद आपको पैसे सिर्फ 5,000 रुपए मिलते थे. जब मांगने जाए ना तो 5,000, वो भी 5 घंटा 6 घंटा उसके ऑफिस में बैठो और सब बताते थे ये है वो है. वो एक रीजन था. दूसरा रीजन ये था कि स्टाफ, मेरा पेमेंट सिस्टम ऐसा था कि मैं एवरी वीक पेमेंट करना चाहिए. गारमेंट में ऐसा रहता है कि एवरी सैटरडे आपको पेमेंट करना रहता है. इतने सालों से कर रहा था, बहुत सारे ओल्ड स्टाफ थे मेरे, लेकिन एक दिन भी अगर लेट हुआ ना कभी तो मुंह उसका छोटा हो जाता था. सर कैसा चलेगा, क्या चलेगा. तो ये सब देख के मैं बोला 25 सालों से जब हम कोई बिजनेस में है और अभी भी हम उसमें स्टेडी इनकम नहीं ले सकते और ऐसे चैलेंजेस आ रहे तो, और बॉम्बे में ओवरहेड्स बढ़ते जा रहे थे सब और मार्जिन्स कम होते जा रहे थे, तो उसके वजह से मैंने सोचा कि अभी मुझे 2005 में मैंने सोच लिया था कि आई वांट टू डू समथिंग न्यू और या कुछ अलग करना है अभी. लेकिन ढूंढते ढूंढते 2007 में मुझे ये फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मिली. और जब पूरा प्रेजेंटेशन देखा,
मेरे सीनियर मिस्टर मनोज गायकवाड़ जो स्पॉन्सर है मेरे, उन्होंने मुझे जब बिजनेस बताया, और इनफैक्ट जब मुझे इनवाइट किया था बांद्रा की ऑफिस में, तो मुझे ऐसा लगा था कोई छोटा सा 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस होएगा, वहां पर जाके बिजनेस देखना रहेगा। वहां पर जैसे ही गया और इतना बड़ा बिल्डिंग देखा, वो बिल्डिंग देख के ही मैं चौंक गया कि मतलब ये तो अलग ही है कुछ। और फिर जब प्रेजेंटेशन देखा और उन्होंने इनकम के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, जो आज मैं बताऊंगा आपको, तो तब मैं चौंक गया, बोला ऐसा भी बिजनेस होता है। तो मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया और सोच लिया कि अभी ये बिजनेस करना है, लेकिन तभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये फुल टाइम करूंगा। और इसी तरह जब 1-1.5 साल तक मैंने पार्ट टाइम करते करते जब मेरी इनकम मेरे फुल टाइम बिजनेस से भी बढ़ गई, तब मैंने मेरा पूरा गारमेंट का बिजनेस था उसको वाइंड अप कर दिया और ये बिजनेस फुल टाइम करना शुरू कर दिया। तो ये रीजंस ऐसा, पैसे टाइम पे आ जाते हैं। 15 तारीख को गए 13 साल से, 15 का 16 नहीं हुआ है, लेकिन 12 तारीख को मेरे अकाउंट में फॉरवर्ड से पैसे आ गए। इनफैक्ट ये लास्ट मंथ अभी मई में ही सबके अकाउंट में 12 तारीख को। तो ये सब रीजंस थे, और जो चैलेंजेस तभी फेस कर रहा था, अभी तो मैं सोच रहा हूँ इनफैक्ट ये अगर कोरोना के पीरियड में अगर मेरा वही गारमेंट का बिजनेस रहता, तो मुझे लगता है कि मेरा घर बार सब कुछ बेच देना पड़ता है, क्योंकि इतना स्टाफ का सैलरी ये वो सब कैसे मैनेज कर पाता। तो कहते हैं ना, जो भी अपने लिए होता है तो अच्छे के लिए होता है। तो गॉड शोड मी द डोर, उन्होंने दरवाजा दिखाया और मैंने वो दरवाजा ओपन करके एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इसकी वजह से मैं फॉरएवर में आया हूँ। वाओ, फैंटास्टिक। मेरे को एक सवाल था, आपने बोला कि पेमेंट के लिए मेरे को किसके ऑफिस में जाके 1-1 घंटा रुकना पड़ता था। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत जन जाता हूँ कि वो 1-1 घंटा रुकने के बाद भी पूरा पेमेंट नहीं बोलने का भाई 5,000 लो, 10,000 लो, बाकी बाद में आओ। हाँ, वही बोलता हूँ ना, 5 लाख आउटस्टैंडिंग रहने का 5,000 भी नहीं मिलने का। कभी कभी तो बोलता है अभी कल आ जाओ, या दूसरे दिन गए तो आज साइन करने वाला कोई नहीं है, तीसरे दिन गए तो बोलता है बॉस नहीं है। तो ऐसा करते करते ऐसा मैं बोला व्हाट इज द यूज, क्या फायदा है ऐसा बिजनेस करके कि जब हम हमारा ही पैसा हमको लिटरली बेग करना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है किसी से। तो बोला ऐसा बिजनेस नहीं करने का, अपने को कुछ ऐसा ढूंढेंगे जो जहां पर एटलीस्ट हम जो भी काम करें वो पैसा टाइम पे आना चाहिए, और कोई ओवरहेड एक्सपेंस नहीं होने चाहिए। नहीं तो आजकल देखो ना, सब दुकान को रेंट भरना है, ये भरना है, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी। और बाय द वे गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स, वो तो टैक्स भरना ही है। हाँ, वो तो भरना ही है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोले कि वन वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूटर, वन ऑफ आवर टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉरवर्ड ने आपको इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम है मनोज गायकवाड़। तो ही इज अ फैंटास्टिक लीडर इन आवर टीम एंड ही इज डूइंग वंडर्स। तो यू आर लकी दैट यू आर इन हिज टीम एंड ही इज अगेन अ फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लीडर है और बहुत अच्छा फोकस्ड आदमी है, और प्रोडक्ट का भी बहुत नॉलेज, बिजनेस का भी बहुत नॉलेज है। मेरा और एक सवाल है, एज फार एज आपका जूना बिजनेस के बारे में, वो बिजनेस चालू करने के लिए आपको परमिशन, अभी बिजनेस चालू किया लेकिन कितने परमिशन लगते थे, म्युनिसिपैलिटी ये वो ऐसा करके टोटल कितने आपको परमिशन चाहिए, और उसका पैसा क्या लगता था, पैसा ऑफिशियली क्या लगता था, और टेबल के अंदर क्या लगता था, मतलब रफली मैं समझ गया। लेकिन रफ गॉट इट। कम से कम मुझे लगता है 8 से 10 लाइसेंसेस लेने पड़ते थे, क्योंकि फायर का लाइसेंस, अभी तो ये सब है, फायर का लाइसेंसेस, एम्प्लॉय लाइसेंसेस, प्रोविडेंट फंड, फिर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस का फंड, फिर नॉर्मल लाइसेंस जो म्युनिसिपैलिटी का लेना पड़ता है, गुमास्ता जिसको बोलते हैं, और फैक्ट्री लाइसेंस फैक्ट्री चलाने के लिए ऐसा। और ऑफिशियली तो अगर बोलूं तो महीने का तभी के टाइम पे साल भर का 10-15 हजार जा रहा था, लेकिन वो टेबल के नीचे वाला तो हर 2 महीने में आके कुछ ना कुछ लेके जाता था, और वो तो उसका कोई लिमिट नहीं रहता था। उसका मुंह तो इतना बड़ा खुलता था कि कुछ पूछो मत। और सब कुछ प्रॉपर रखने के बावजूद भी वो देना ही पड़ता है, उसके बिना चलता नहीं है, नहीं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक वो निकालेगा और वहां पर अपना बंद करने का टाइम लेके आएगा। तो ये बिजनेस चालू करने के पहले आपने आप बोल रहे थे फैमिली बिजनेस था, तो आप बच गए, मतलब रेडीमेड थोड़ा मिल गया आपको। नहीं तो नॉर्मली अगर एक नया आदमी को ये बिजनेस चालू करना है, न्यू फ्रेश गाय, आपका तो फैमिली बिजनेस था, तो उसको रफली इन्वेस्टमेंट खर्चा कितना लगेगा रफली?
एक समझो नॉट वेरी बिग फैक्ट्री, नॉट वेरी लो फैक्ट्री, मीडियम फैक्ट्री। देखिए प्रॉपर्टी का रेट्स तो छोड़ दो, प्रॉपर्टी तो रेंटल देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी लेके कोई बिजनेस आज कर नहीं सकता है। तो नॉर्मली भी अगर करने गया मशीनरी और ये सब लेने गया तो कम से कम 10-15 लाख, 10-15 लाख तब भी के टाइम पे बात कर रहा हूँ। और उस टाइम पे 2007 में जब मैंने बंद किया तभी मेरा ओवरहेड्स, महीने का ओवरहेड्स कम से कम 1 लाख रुपया था। यानी जब तक मैं 1 लाख रुपया नहीं कमाता है तब तक मेरे घर में कुछ भी नहीं आएगा, मेरे को सब उधर पे करना है, उसके बाद ही मेरे घर पे आए। और एक एक टाइम ऐसा आया वो हुआ है कि वर्कर्स को, स्टाफ को पेमेंट करने के बाद मेरे जेब में 10 रुपया भी नहीं रहता था, और मैं खाली गाड़ी में पेट्रोल रहता था करके घर जाता था, और संडे को कहीं बाहर नहीं जाता था, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो जाएंगे किधर। राइट, आई मीन इट्स रियली सैड कि अभी जो अभी क्या हो रहा है कि इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू हेल्प। हम लोग हर को हेल्प करते हैं कि आ जाओ नेटवर्किंग में, पार्ट टाइम Yeah. करो, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो कि कल कुछ भी हो जाएगा, यू कैन हैव समथिंग टू फॉलो। तो हम लोग तो ये एडवाइस करते हैं। अच्छा, चैट में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट मैं वो क्वेश्चन अभी नहीं लूंगा, क्योंकि आई वुड वांट, मैं ये चाहता हूँ कि एंड ऑफ द सेमिनार तक रुके तो वो क्वेश्चंस हम पूछे। तो Sure. गाइज, आपका अगर जयेश के लिए कोई सवाल है चैट बॉक्स में डालना, मैं अभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि एंड जो सेमिनार खत्म होता है उस टाइम पे हम ये क्वेश्चन जयेश जी को पूछे। तो जयेश, फर्स्ट आपका फैमिली ने ये कैसा दिया, मतलब आप एक फैक्ट्री चलाते थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते थे, तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने ये कैसा आपको मतलब ट्रीट किया कि ये क्या है? जैसा मेरा मेरा पिताजी, तो मैं ज्वाइन किया Yeah, तो yeah. मेरे को नालायक मुलगा बोलते थे। एनीवे, तो ऐसा आपके फैमिली ने आपको कैसा ट्रीट किया? फैमिली का तो पूछो ही मत। फादर से लेके सब जन पहले तो बोलते थे क्या पागल हो गया है, इतना बड़ा फैक्ट्री है, इतना अच्छा चल रहा है सब कुछ, और तू जाके ये पीला डब्बा जाके कुछ करेगा, या ऐसा बिजनेस कभी होता है क्या, लोगों को ज्वाइन करके कभी पैसा मिलता है क्या, ये वो। लेकिन बिजनेस किसने देखा था? मैंने देखा था, तो मुझे इसका पोटेंशियल मालूम था। और कजन्स लोग ये वो सब बोलते थे ये पागल हो गया है, इसको है ना अक्ल नहीं है, ये कुछ अपना फैक्ट्री भी बिकवा देगा और खुद भी रोड पे आ जाएगा। लेकिन अभी उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा था, क्योंकि बिजनेस मैंने देखा था, तो डिसीजन कौन ले सकता है? मैं दे सकता है। वो लोग ने तो बेसिक चीजें देखी ही नहीं थी ये कंपनी के बारे में। बट वो क्या है कि लोगों का सुन के उनको भी ऐसा ही लगता था कि ये है, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि नहीं, ये कितना अच्छा बिजनेस है ये। फैंटास्टिक। ऑल द पार्टिसिपेंट, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, आज मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है, मैं मोबाइल डेटा यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं एक काम करूंगा कि मैं को होस्ट इवन ज्योति भारती को बनाऊंगा, क्योंकि बाय चांस मेरा कुछ नेट का प्रॉब्लम हुआ, द शो शुड नॉट स्टॉप। शो जो है, जो इवेंट है, वो बंद नहीं होनी चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा नेट नहीं जाएगा, क्योंकि मैं मोबाइल का वाईफाई यूज कर रहा हूँ। लेकिन still I'll make ज्योति भारती, who's one of our top distributors, also a trainer. अच्छा, मैं सुना आप भी फॉरएवर के ट्रेनर हो, राइट? यू आर वन ऑफ द टॉप ट्रेनर्स विद फॉरएवर, राइट? यस यस। तो आपको ये ट्रेनिंग में कैसा इंटरेस्ट आया, जो आप मतलब एक गारमेंट इंडस्ट्री में है, जो आप बॉस थे, आप डिक्टेट करते थे, अभी आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, मतलब ट्रेनिंग में क्यों है? इज इट बिकॉज ऑफ मनी? इज इट बिकॉज ऑफ आप दूसरे को भी एक बिजनेस सिखा सकते हैं? इज इट बिकॉज ऑफ नॉलेज और प्रोडक्ट्स? ये ट्रेनिंग में आने का पहले तो मेरे कभी दिमाग में भी नहीं आया था, क्योंकि जब मैं सब ट्रेनरों को देखता था तो मैं तो ऐसा सोचता था कि मैं ये कर ही नहीं सकता, दिस इज देयर गॉड गिफ्ट। मेरे दिमाग में वही रहता था कि ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे स्कूल के लाइफ में कभी भी मैं स्टेज पे नहीं गया हूँ, कोई पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ कोई भी कंपटीशन। लेकिन थैंक्स टू माय स्पॉन्सर मिस्टर मनोज गायकवाड़ और फॉरएवर और आप जैसे लीडर्स, जिन्होंने मुझे एक पुश किया कि नहीं, वो तुम में भी है और तुम भी कर सकते हो। और वहां से मैंने शुरू किया। तो मैंने सोचा कि पैसे के लिए मैं ट्रेनर नहीं बनाऊं, क्योंकि फॉरएवर ने मुझे कुछ दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं लोगों को दे सकूं, उसमें का कुछ हेल्प कर सकूं, और मेरी वजह से अगर किसी को कुछ फायदा हो सके। वाह, फैंटास्टिक। इसे तो ट्रेनर। या तो आप, आपका जो फील्ड था, आई एम श्योर दे माइट बी लॉट ऑफ चैलेंजेस, बिकॉज मैंने जो सोचा है कि लेबर लोग नॉर्मली आते हैं एडवांस दो। हाँ हाँ, अच्छा, एडवांस बोलेंगे, माँ अच्छा नहीं है, बेटी अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मतलब लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। तो मतलब खुद का उन लोग का तो कभी कभी लोन लेके, एक टाइम लोन ले लिया गुल,
और मालूम पड़ा अगर हमने लोन नहीं दिया ना तो आप दूसरे फैक्ट्री में जाते, मैं ऐसा सुना है, ये सच यस बात है? यस यस, तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था आपके साथ? बहुत सारे इंसिडेंट, यानी साल का है ना, एक 1-1.5 लाख रुपया तो साइड में रख देने का, भूल जाने का उसको, ये लोग को एडवांस जो दिया वो कभी भी जा सकता है। और सिर्फ एडवांस की बात नहीं, रेट्स में या सैलरी में भी 5 पैसा या 5 रुपए का भी फर्क पड़े ना, तो वो तुरंत दूसरे दिन बाजू वाले का गारमेंट फैक्ट्री में दिखेगा वो काम करके। और कोई वैल्यू नहीं है कि आप कितने पुराने और कितने सालों से उनको रख रहे हो। मतलब एकदम आई मीन आई कैन ओनली विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज आप फॉरएवर में आए तो आपका एटलीस्ट फॉरएवर में आपको क्या चैलेंजेस, ऐसा कुछ चैलेंजेस फॉरएवर में हुआ? आपको पेमेंट बराबर टाइम पे नहीं मिला, या आपको आपका जो पेमेंट टाइम पे नहीं आया और आपको बोला कि आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने, फॉरएवर ने ऐसा कभी किया था क्या? फॉरएवर में ये पेमेंट का चैलेंज मेरे को अभी तक नहीं आया, मेरे को पूछने भी नहीं जाना पड़ता है। जब जैसे कंपनी बोलती है कि 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो डॉट 15 को आ जाते हैं। और अगर बैंक बंद है तो 12 तारीख को भी मेरे अकाउंट में पैसे आए, 16 तारीख को कभी भी नहीं आए। तो मेरे को कभी पूछने को नहीं। फॉरएवर में कोई चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस हम खुद अपने सर पे डालते, कोई चैलेंजेस नहीं है। यहाँ पे खाली सीखना है और अच्छे से समझना है, काम करने का, पैसे का भूल जाने का, पैसा आएगा ही आएगा। वो 1 रुपया क्या, 1 पैसे का भी फाइनल जो चेक आता है, कभी वो 0.01 पैसा भी रहेगा तो वो आ जाता है, वो भी बैलेंस नहीं रखता है। वाह, बहुत फैंटास्टिक। और मैं सुना कि अगर 15 तारीख को बैंक हॉलिडे होता है तो 13 को होता है, 13 बैंक हॉलिडे हुआ तो यस, ऐसा कुछ मैं अभी सुना है। या अभी ये मई का 12 को क्यों, इस बार तो बैंक भी बंद नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ ईद कंपनी वाह, ने सोचा कि सबको फायदा होना चाहिए, और क्योंकि ये पैंडेमिक है, हर एक को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी ने 12 तारीख को ही सबके अकाउंट में पैसे दे दिए। तो ये क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी है जो हम सबका सोचती है। बाकी वो वाह, में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। वाह। मेरा ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चन डाल रहे चैट बॉक्स में, वो हम एंड में लेंगे, लेकिन आपका नाम वहां डालना, क्योंकि मेरे को आईफोन, ओप्पो, विप्पो, टिप्पो आता है, वो नहीं चलेगा। आपको आपका, जैसा कपिल झवेरी ने मैसेज भेजा है तो मैं देख सकता हूँ, फिर सेकंड किसने एप्पल आईफोन लिखा है, आई डोंट नो हु दिस एप्पल आईफोन इज। तो प्लीज आपका जो नाम है वो रखना, आप वो चेंज कर सकते हैं, और प्लीज पुट योर ओन नेम सो वी नो कि हु यू आर। नहीं तो कभी ओप्पो, विप्पो, टिप्पो, विप्पो क्या क्या नाम आते हैं, गॉड नोस। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो जयेश जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरे को ये चाहिए कि आप हमारे जो पूरे ऑडियंस है, हमारे जो पूरे लोग हैं, उनको ये बताओ कि ये फॉरएवर का बिजनेस कैसा कर सकते हैं, और किस तरीके से आप मैसिव इनकम और मैसिव सेटअप कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यू कैन शेयर द स्क्रीन, यू ऑलरेडी द को-होस्ट, सो यू कैन शेयर द स्क्रीन। जरूर जरूर बताना चाहूंगा, और किस तरह करना है, कैसे करना है, और क्यों करना है फॉरएवर, और क्या देखना है फॉरएवर करते वक्त, या कोई भी ऐसा बिजनेस हमारे सामने आए तो क्या करना चाहिए हमें, वो वो देखना जरूरी है। तो या तो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। परफेक्ट सर। या तो मैं इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम कहता हूं, क्योंकि इस कंपनी ने, फॉरएवर ने, मेरी लाइफ को एक यू टर्न दे दिया। ओके, और ऐसे कई लोग, सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ हजारों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर दी है ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है ना, तो हमें कुछ पैरामीटर्स देखना बहुत जरूरी है। और वो पैरामीटर्स क्या है, मैं स्ट्रेट अवे उसके ऊपर ही आता हूं। और लेकिन उसके पहले ये समझाना जरूर चाहूंगा कि फॉरएवर जैसा बिजनेस क्यों करना चाहिए। ओके, तो ये सब जानते होंगे, ये रॉबर्ट कियोसाकी है, रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी है इन्होंने, कैश फ्लो क्वाड्रेंट और बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, ये सब लिखा हुआ है। इन्होंने जो भी एक इनकम कमाने का जरिया है, इनको 4 हिस्सों में बांट दिया है। 2 को लेफ्ट में रखा है, 2 को राइट में रखा है। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉइज, यानी जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनके लिए। और दूसरा एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे सीए होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनके लिए। और
तो वो जो जितना काम करेंगे उतना ही उनको पैसा मिलेगा, उसके लिए उनको एक्टिव इनकम में रखा गया। ओके, और दूसरा है पैसिव, जो राइट साइड में बिग बिजनेस। बिग बिजनेस यानी जो जिसकी बड़ी फैक्ट्रियां है, बड़ी यूनिट्स है, जैसे कॉर्पोरेट टाटा, बिरला, अंबानी वगैरह, उस तरह के लोग। और चौथा है आई यानी इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर यानी क्या, जिसके पास करोड़ों रुपए है और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है इधर प्रॉपर्टी में या बैंक्स में रखे हैं और उनका इंटरेस्ट उनको आ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने 4 हिस्सों में रखा है। अब दुनिया में जितना भी पैसा है ना, उसका उसका 95% ये पैसिव लोगों के पास। लेकिन मजे की बात है कि ये पैसिव लोग जो साइड में जो है, वो जितने भी बिजनेस करते हैं उसका सिर्फ 5% लोग इस तरफ है, और जो 95% इस तरफ है उनके पास सिर्फ वो 5% पैसा जा रहा है, बाकी का बचा हुआ, और उसके लिए भी स्ट्रगल करते हैं। ओके, यानी एक्टिव यानी क्या कि आप इतने घंटे काम करेंगे या आप खुद हाजिर रहेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, वरना पैसा आपको या इनकम नहीं आएगा। लेकिन पैसिव साइड में क्या है, आप खुद हॉलिडे पे भी गए तो आपकी इनकम कहीं नहीं रुकेगी, आपको इनकम आती जाएगी। लेकिन एक्टिव में से पैसिव में आने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा, और सबसे पहले हमारे पास एक सही जरिया होना चाहिए उस तरफ आने का, या जिसको आप बोलते हैं टाइम मल्टीप्लाई करना है आपको, या टाइम लीवरेज करना है। टाइम तो हर एक के पास 24 घंटे है, लेकिन उसको लीवरेज कैसे कर सकते हैं और लीवरेज पैसिव इनकम कैसे मिल सकती है, वो हमें जानना है और समझना है। तो इसके लिए जब भी कोई बिजनेस हमारे सामने आए तो हमें 3 चीजें देखनी बहुत जरूरी है, और वो है कंपनी का बैकग्राउंड। कंपनी का बैकग्राउंड देखना इसके लिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बड़े बड़े सपने दिखा के जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, लोग अपने घर बार बेच देते हैं और पता चला कि वो कंपनी कहाँ चली गई पता नहीं। और जहां से हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करती है या लाइफ बनानी है, वहां पर हमें कंपनी का बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। दूसरा और इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट। किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट पावरफुल होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे काम क्या करता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट शुड बी पावरफुल इन एनी बिजनेस। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, उससे मिलने वाला पैसा। मान लो कंपनी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे मिलने वाला पैसा ही अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो हमारे लिए तो ना ही वो कंपनी सही है, ना ही वो प्रोडक्ट सही है, क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए। तो ये 3 एसिड टेस्ट होती है किसी भी कंपनी का बिजनेस करने के लिए। तो यहां पर हम देखेंगे फॉरएवर कहां पर खरी उतरती है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत मिस्टर रेक्स वॉन सर ने की थी 1978 फीनिक्स एरिजोना में, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी फिलॉसफी पे इन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था। और ये फिलॉसफी पे से ही समझ में आएगा कि हम कैसी कंपनी के साथ जुड़े हैं। आपको अगर पढ़ने को हो सकता है तो पढ़िए, मैं भी पढ़ के बताता हूँ आपको। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्सेज ऑफ इलनेस इन द वर्ल्ड इज एन एम्प्टी वॉलेट। If you want to decrease the number of stomach problems or the ill effects of depression, then give a person a chance to earn a living. This is a powerful remedy. एक बहुत ही संक्षिप्त में, सिंपल भाषा में अगर कहूं ना, कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, वो है एक खाली जेब। अगर किसी को एक मौका दे दिया जाए ना बड़ा पैसा कमाने का, तो दुनिया से बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती है। और यही फिलॉसफी पे इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 13 मई 1978 को फीनिक्स एरिजोना से। और ये है हमारा हेड ऑफिस, जो है तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फुट में बसी हुई है। और गई 13 मई को इस कंपनी को 43 साल कंप्लीट हो गए ये बिजनेस करते हुए। आप सकते रहे थे 43 इयर्स सक्सेसफुली ये कंपनी रन कर रही है। और भी सिर्फ ऐसा नहीं है, 160 देशों में ये बिजनेस चल रहा है। ये हमारी हेड ऑफिस है ब्राजील में, फिर जापान में, ये कुछ और इंटरनेशनल ऑफिसेस मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नीदरलैंड्स, केनिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड वगैरह। और ये है हमारी हेड ऑफिस इंडिया की, जो है मुंबई में, बांद्रा में, बांद्रा वेस्ट में। ओके, ये कंपनी की खुद की बिल्डिंग है, ओन्ड बाय द कंपनी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और
हमारे हेड ऑफिस और भी हमारे ब्रांचेस हैं 19 जगह पे, अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, शिलोंग, हैदराबाद वगैरह। हमारी कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या? प्लांट से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ हम करते हैं। यानी जमीन हमारी खुद की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा खुद का है, किसानों को पगार हम खुद देते हैं, फैक्ट्रियां हमारी खुद की है, यहाँ तक की जो बॉटल्स और ट्यूब्स है उसकी लेबलिंग, प्रिंटिंग, पैकिंग भी हम खुद करते हैं और मैनेज। इसी की वजह से क्वालिटी जो रहती है वो कंट्रोल्ड रहती है और प्रॉपर रहती है। ओके, कैश रिच। हमारी कंपनी को कैश रिच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? शॉर्ट में कहूंगा तो 160 देशों में काम चल रहा है, 3.5 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर है, तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 1.5 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स है, यानी 10,000 करोड़ के तो एसेट्स हैं। एक्सपीरियंस्ड सीनियर मैनेजमेंट टीम है, कैश रिच, डेट फ्री। इस कंपनी ने किसी भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक भी पैसे का लोन नहीं लिया, ना ही ये कोई शेयर मार्केट का पैसा है, ये सब हमारा खुद का पैसा है। इसीलिए ये कंपनी को कैश रिच हम कहते हैं। अब कंपनी का बैकग्राउंड तो काफी सही है। प्रोडक्ट्स जो है वो है वेलनेस इंडस्ट्री के रिलेटेड। अब वेलनेस इंडस्ट्री जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है आज की तारीख में। 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स का टर्नओवर हो चुका है, यानी 14 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है तकरीबन। और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी आगे है। और वेलनेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एक फायदा ये है कि इसका कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है, क्योंकि हर एक को हेल्दी दिखना है, हर एक को अच्छा दिखना है, तो वेलनेस इंडस्ट्री में ये सब चीजें आती है। तो इसका किसी को भी ये तो होगा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं दिखना है या मुझे हेल्दी नहीं रहना है। और आज के ये पेंडेमिक के दरमियान तो हर एक को हेल्दी और रहना बहुत जरूरी हो गया है। अब हमारे पास वेलनेस इंडस्ट्री में हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स? हमारे पास है एलोवेरा और एलो बेस्ड प्रोडक्ट्स, दूसरा है हनी और हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स। और ये दो सेगमेंट्स में वी आर द वर्ल्ड लीडर्स। 7,500 एकड़ की जमीन है हमारे पास डोमिनिकन रिपब्लिक और टेक्सास में, सिर्फ 7,500, जहां पर सिर्फ एलोवेरा उगाया जाता है। आप समझ सकते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए मदद करेगा। ये इम्यूनिटी शब्द गए मार्च 2020 से हम रोज दिन में कम से कम 50 बार सुन रहे हैं, लेकिन फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो 43 इयर्स से लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर रही है। तो ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स है हमारे पास। वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स है, वजन को कम करना, वजन को बढ़ाना, उसके लिए भी प्रोडक्ट्स है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है। जो आप एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करते हो उसकी जगह पे ये प्रोडक्ट यूज करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ ब्रांड चेंज करके। क्योंकि जो भी कमर्शियल प्रोडक्ट, एक्स प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसके बाद इतने सालों से वापर के आपके घर में एक भी पैसा नहीं आया, लेकिन यहां से आपको आ सकता है अगर आपने ये सिस्टम समझ लिया सही तरह से। तो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, फिर टारगेटेड स्किन केयर, वो सब भी है। अब क्या हुआ? कंपनी स्ट्रांग, प्रोडक्ट स्ट्रांग। अब हम देखें पैसा कितना स्ट्रांग। तो ये द वीक करके मैगजीन, इसमें आपको यहां पर ये मैं थोड़ा सा कॉर्नर में आपको ब्लू टी शर्ट में दिख रहे हैं, उनको शायद आप पहचानते होंगे जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन किया अभी, साइमन डेविडसन जी। इनका इंटरव्यू आया था नवंबर 2006 की ये मैगजीन में, द वीक में। इंटरव्यू काफी बड़ा है, मैं ये नीचे की जो 4 लाइन है उसको एनलार्ज करके आपको बताता हूँ क्या लिखा है। आप जरा अपने आप जोर से पढ़िए। साइमन डेविडसन, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मुंबई, न्यू रिचेस ₹4 lakhs a month, got 3 cars and 12 trips abroad as incentive। यानी 2006 में इनकी इनकम 4 लाख रुपए पर मंथ, गाड़ियां 3 और 12 बार विदेश जाके आ चुके हैं। और वो पर्सन और कोई नहीं है जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन किया और जिनको आप सब जानते हैं। और यही नहीं, लेटेस्ट इनका गाड़ी है ऑडी A6। तो इस तरह का इनका गाड़ी का कलेक्शन है, यानी आप यहां से अपनी लाइफस्टाइल पूरी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास और एक इनकम है जिसको हम चेयरमैन्स बोनस कहते हैं या दिवाली बोनस भी कहते हैं, जो अचीवर्स को बांटा जाता है। और जो भी टर्नओवर रहता है कंपनी का, उसका 3% जो है वो अचीवर्स में बांटा जाता है। और 2007 में साइमन डेविडसन जी को मिला था 23,90,917। ओके, ये हर साल दिया जाता है। मैं हर साल के चेक्स नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे एक लिमिटेड टाइम में इसको कंप्लीट करना है,
तो कुछ चेक्स, कुछ सालों के चेक्स में दिखाऊंगा। 2010 में यहाँ पर आप देख सकते हैं सुनील गुप्ता जी को मिला 81,82,000 और साइमन डेविडसन जी को मिला 89,26,000। और भी छोटे छोटे चेक्स बहुत लोगों को मिले हैं, लेकिन वो यहाँ पर वक्त नहीं है बताने का। 2 लाख से चेक्स शुरू हो जाते। 2017 में वन ऑफ द हाईएस्ट चेक्स मिला सूर्या सिन्हा जी को 3,84,00,000 रुपए का सिंगल बोनस चेक। 3,84,00,000 हम सोच भी नहीं सकते कि कहीं और से ऐसा पैसा हम कमा सकते। तो इस तरह का। तो अब क्या हुआ, कंपनी स्ट्रॉन्ग, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग, पैसा भी स्ट्रॉन्ग। अब हम देखते हैं हमें करना क्या है, उसके ऊपर आते हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा जरूर, 2021 ये पेंडेमिक का ईयर था। इनफैक्ट 2020 से ही शुरू हो गया था। ऐसे पीरियड में भी इस कंपनी ने 11 अप्रैल को तकरीबन 140 करोड़ रुपए बांटे। अगर चाहती तो कंपनी कहती पेंडेमिक है, सेल्स कम हुआ है या कुछ और रीजंस बता के शायद ये पैसे नहीं बांटती, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फॉरएवर ऐसी कंपनी नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये हमेशा उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचती है और एकदम ट्रांसपेरेंट कंपनी है। तो 140 करोड़ रुपए बांटे। और भी रैली नहीं हुई थी और जिन्होंने रैली क्वालिफाई की थी उनको वो आने जाने के पैसे भी दिए, प्लस एक्सपेंसेस दिए। और जो भी इंडिया में थे, जो भी क्वालिफायर्स थे, इनफैक्ट मिस्टर साइमन डेविडसन भी थे, उनको दिल्ली बुलाया था 3 दिन के लिए, ला मेरिडियन में रुकाया था। तो कंपनी इस तरह का हमें हेल्प देती है, हमें इतना सम्मान देती है, रिस्पेक्ट देती है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को। तो अभी हमें करना क्या है? अभी जिस किसी ने भी आपको यहाँ पर बुलाया है, जैसे ही ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा और आपको समझ में आ गया, तो आप उनको तुरंत कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि मुझे वो लिंक भेजिए, मुझे ज्वाइन करना है। तो वो आपको एक लिंक भेजेगा जो रहेगा माई फॉरएवर इंडिया का एप्लीकेशन का। ये एप्लीकेशन से आप ये लिंक डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, डिटेल्स फिलअप करनी है। डिटेल्स फिलअप भर के आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, आपके एड्रेसेस, ये सब डिटेल्स फिलअप करनी है। और ये फिलअप करके आप बन जाएंगे हमारी कंपनी के प्रेफर्ड कस्टमर, यानी एक चहीता कस्टमर। फायदा क्या होगा वो भी आगे मैं शेयर करूंगा। आप सबसे पहले ऐसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो जिसका टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का। 25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाली कंपनी के आप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनते हो? फ्री में, सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें अपनी डिटेल्स फिलअप करके। उसके साथ साथ में और क्या फायदे हैं? ऑफकोर्स ये पेंडेमिक के दरमियान ऑफिस बंद है, लेकिन जैसे ही ऑफिस खुल जाएगी आप वहां पर जा सकते हो। ट्रेनिंग्स आपको फ्री में मिलेगी और जो अभी भी आपको मिल रही है। फेसबुक पे हमारी रोज ट्रेनिंग चलती है 11:30 बजे और वीकेंड्स में 7 बजे शाम को रहता है। वो सब आप फ्री में देख सकते हो। और सबसे बड़ा फायदा, आपने फॉर्म भर दिया, आपको कभी भी कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करने हैं तो आपको कंपनी डिस्काउंट देगी 15% बीआरपी का। बीआरपी यानी बोनस रिकैप प्राइस जिसको कहते हैं। तो स्ट्रेट अवे आपने सिर्फ अपनी डिटेल्स दी और केवाईसी अपलोड किया तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है 15% का। और अभी आपको करना क्या है? ये सब करने के बाद आपने डिटेल्स फिलअप कर दी, आपको एक 12 डिजिट आईडी नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको करना क्या है? आपको करना है अंडरस्टैंडिंग। देखो, इतना बड़ा पैसा, इतने सारा पैसा बांटा जा रहा है तो ऐसे ही नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सिंपल कहूँ तो हम जो कुछ भी, अगर हम जॉब भी कर रहे हैं तो हमने 15 साल उसके लिए स्टडी किया, मेहनत की, और उसके बाद हमको जो भी XYZ इनकम मिलती है वो मिलती है। तो यहाँ पर भी कुछ आपको 15 साल नहीं लगाने, आपके ऊपर है आप कितना जल्दी सीखते हो उसके बाद। तो अंडरस्टैंडिंग कीजिए। ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है। हमारी वेबसाइट है foreverlink.com, यहाँ जा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है, बुक्स अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपीज है। आपके जो भी रिस्पेक्टिव जिसने स्पॉन्सर्स जिसको हम कहते हैं, उन्होंने जिन्होंने बुलाया उनसे आप उनकी सॉफ्ट कॉपीज मंगा सकते हैं। और मैं कहूंगा यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो आपको उसका पावर नहीं पता चलेगा। तो प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। तो मान लीजिए आपने ये लिंक आपको मंगाई, आपने उसमें डिटेल्स सब भर दी और
आपने अपना केवाईसी अपलोड कर दिया, यानी पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स, वो जो फॉर्मेलिटीज थी वो सब कंप्लीट कर दी, और आपने कोई भी एक पर्टिकुलर मंथ में 5,000 रुपए का टर्नओवर कर लिया। एक सिंगल मंथ में अगर आपने 5,000 रुपीज का टर्नओवर कर लिया तो आपको कंपनी देती है स्पॉन्सरिंग राइट्स। आप अपनी टीम बना सकते हो, यहां से ही शुरू हो जाता है आपका काम। ओके, देखिए, 2 हाथों से काम करके कोई आदमी अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनना है तो आपके पास सैकड़ों हाथ होने चाहिए। तो इस तरह से जब आप अपनी अपनी टीम बनाना शुरू कर सकते हो, आप मान लीजिए आपने 5,000 का टर्नओवर कर लिया और आपने एक ए पर्सन को ज्वाइन किया और उन्होंने भी कुछ परचेस किया, तो उनके परचेस के ऊपर कंपनी आपको देगी 15% ऑफ बीआरपी, यानी तकरीबन रफली इसको कहते हैं प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, पीसीबी है। यानी रफली अगर उसने 1,000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज किया तो आपको 150 रुपीज आएगा, या 5,000 का किया तो आपको 750 रुपीज आ सकता है। और ये जो अमाउंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपके अकाउंट में नेक्स्ट 15th को आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, है ना ये बात। और 15th को अगर बैंक हॉलिडे है तो 12 तक भी आ जाता है, 13 14 को अगर बैंक बंद है तो इस तरह से भी आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा, ये एक छोटी इनकम यहां से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो फिर आपको एक अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, और वो यहाँ पर इस तरह से होगा। ये जो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बिजनेस पार्टनर बनना होगा। अगर आपके सपने बड़े हैं और बड़ा पैसा कमाना है तो यहाँ पर आपको बिजनेस पार्टनर बनना पड़ेगा, जिसको हमारे कंपनी के हिसाब से असिस्टेंट सुपरवाइजर कहते हैं। अब बिजनेस पार्टनर, किसी भी बिजनेस में अगर बड़ी इनकम चाहिए तो बिजनेस पार्टनर बनना जरूरी है, वरना इनकम बहुत छोटी कम आएगी। तो अगर बड़ी इनकम चाहिए तो बिजनेस पार्टनर हमारी कंपनी में कैसे बन सकते हैं? तो आपको किसी भी लगातार 2 महीनों में 2 सीसी का टर्नओवर करके बताना। अब ये 2 सीसी क्या है? 2 सीसी, जिसको हम इंटरनल करेंसी कहते हैं, कॉमन करेंसी कहते हैं, या केस क्रेडिट्स कहते हैं। ओके, जैसे 1 सीसी यानी 1000 पॉइंट, यानी 1 किलो में 1000 ग्राम रहता है, वैसा 1 सीसी में 1000 पॉइंट। तो जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हो, आपके अकाउंट में उतने पॉइंट्स जमा हो जाते हैं। हर एक प्रोडक्ट को उसकी वैल्यू के मुताबिक उसको पॉइंट्स दिए गए। तो इस तरह से 1 सीसी यानी 1000 पॉइंट, और 1000 पॉइंट की या 1 सीसी की एमआरपी वैल्यू क्या है? एमआरपी वैल्यू है तकरीबन 16 से लेके 18,000 रुपए। ओके, अब कंपनी क्या कहती है? आपके चॉइस के किसी भी 2 लगातार महीनों में आप कर सकते हो ये। तो जैसे ही आप किसी भी 2 लगातार महीनों में करते हो, लेकिन उसके पहले क्या होता है? आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट कितना मिलता है? 15% ऑफ बीआरपी। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 सीसी की आपके लिए वैल्यू हो जाएगी 15,000 रुपए डिस्काउंट के बाद। तो यानी किसी भी लगातार 2 महीनों में जब आप 30,000 रुपए का टर्नओवर कर लेते हो तो आप बन जाते हो बिजनेस पार्टनर या असिस्टेंट सुपरवाइजर। और ये बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? एक कि इसके बाद आपके अंडर कोई भी ज्वाइन होएगा टीम मेंबर, या जो ऑलरेडी ज्वाइंड है और उसको प्रिफर्ड कस्टमर है और उन्होंने कुछ भी परचेस किया, तो आपको मिलेगा 15% प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट और 5% पर्सनल बोनस, यानी टोटल 20% मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में बताओ, अगर आपने अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर ली और आपके अंदर कोई भी 2 सीसी करता है, आपको तकरीबन 5.5 से लेके 6,000 रुपए का चेक आता है। तो मान लो किसी भी लगातार आपने महीने के स्टार्टिंग में ये 2 सीसी कर लिया और पूरे महीने में आपने रोज कम से कम 5 लोगों को ये बिजनेस के बारे में बताया, और ये ऐसे वेबिनार्स में इनवाइट किया या उसके वीडियोस उनको भेजे, और ये पूरे महीने में 125 लोगों को जब आपने बताया, उसमें से मैं तो कहता हूँ सिर्फ 10-12 लोगों ने भी अगर 2-2 सीसी की, तो आपको तकरीबन 60,000 से 72,000 का चेक आ सकता है। और ये आने के बाद आपको आपके टीम मेंबर्स जो जुड़े हैं वो बोलेंगे कैसे आया, तो आपको ये इस तरह से आप उनको बता सकते हो। ये 2 सीसी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। एक सिंपल वे में अगर बताओ तो सीधा अपने पास पैसे है, 30,000 का टर्नओवर कर लो, कुछ प्रोडक्ट्स यूज करो और बाकी का रिटेलिंग कर दो। सेकेंड ऑप्शन, आपके पास इतने पैसे नहीं है
तो 10-15 हजार रुपए, तो 10-15 हजार के प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लो और वो प्रोडक्ट रिटेलिंग करो, वो पैसा आएगा। तो फिर से उसको और एक 10-15 हजार के प्रोडक्ट लेके अपनी 2 सीसी कंप्लीट करो। और तीसरा ऑप्शन है, इतना भी पैसा नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए जिसको ये प्रोडक्ट की जरूरत है, जिसको कोई हेल्थ चैलेंजेस है या जिसको कोई पर्सनल केयर प्रोडक्ट चाहिए, स्किन केयर प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे लोगों को आप ये प्रोडक्ट के बारे में बताइए या प्रोडक्ट के सेशन में लेके आइए। और 15, 20, 25 लोग जब को आप ये बताएंगे तो उनमें से कुछ लोग बोलेंगे मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको क्या करना है, अपने नाम पे प्रोडक्ट लेके उनको दे देना है। तो ऐसे 5-6 लोगों ने भी 4-5 हजार के प्रोडक्ट लिए आपसे, तो आपका हो गया 2 सीसी, ये हो गया 0 इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको 3 अलग तरह बताए कि किस किस तरह से आपको ये 2 सीसी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जिस दिन ये बिजनेस देखा था, मुझे समझ में आ गया था कि ये बिजनेस में अगर बड़ा पैसा कमाना है तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचना जरूरी है। और मैंने उसी दिन अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर ली थी। क्यों? क्योंकि मुझे रोल मॉडल बनना था, ताकि जब मेरे लोग आए और मैं जिसको इन्वाइट करूँ और वो जब मुझे पूछे कि आप कौन से लेवल पे हो, तो मैं बता सकता हूँ कि बिजनेस पार्टनर मैं ऑलरेडी बन चुका हूँ। तो ऐसे क्या होगा कि आपका बिजनेस जो है वो फास्ट ग्रो होगा। तो इसीलिए जल्द से जल्द आप बिजनेस पार्टनर बनने का कोशिश कीजिए। बिजनेस पार्टनर बनने के और फायदे क्या है, आपको जो डिस्काउंट अब तक 15% मिल रहा था वो आपको हो जाएगा 30%, और ये रहेगा लाइफ टाइम के लिए। यानी जो 16 से 18 हजार के प्रोडक्ट थे आपको 15 हजार में मिल रहे थे, अब उसका प्राइस ड्रॉप होके 12 हजार हो जाएगा। 12 हजार का हो जाएगा, लेकिन कमीशन जो आपको आएगा वो 15 हजार पे आएगा, क्योंकि बीआरपी वैल्यू जो है वो 15,000 है एक सीसी की। इसी तरह जब आप और आपकी टीम मिलकर किसी भी लगातार 2 महीनों में 25 सीसी का टर्नओवर कर लेंगे, आप बन जाएंगे सुपरवाइजर, और यहां से आपको 8% पर्सनल बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब आप 75 सीसी का टर्नओवर कर लेंगे किसी भी लगातार 2 महीनों में, आप और आपकी टीम मिलकर, तब आप बन जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर, और यहां से आपको 13% मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह जब आप और आपकी टीम मिलकर किसी भी लगातार 2 महीनों में 120 सीसी का टर्नओवर कर लेंगे, तब आप बन जाएंगे मैनेजर, और यहाँ पे आपको 18% पर्सनल बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप ये लेवल पे पहुंचते हो तो आपकी इनकम कम से कम 40,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख कुछ भी हो सकती है। आप और आपकी टीम मिलकर कितनी मेहनत करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया रहेगा। डे 1 को शायद इतना जल्दी इजीली समझ में नहीं आएगा, आप जब ये बार बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं खुद 25 साल बिजनेस करने के बावजूद भी जब ये बिजनेस मैंने पहली बार देखा था तो मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे बार बार इसको समझना पड़ा था, और तब जाके लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई थी कि यहाँ पर अगर मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, सीखने को तैयार हूँ, तो यहाँ से मैं बड़ी इनकम ले सकता हूँ। और वही हुआ। पार्ट टाइम करते हुए तकरीबन 1.5 साल के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे पहुंच गया। तो ये सब बिजनेस देखने के बाद ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो है ना, ये आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी बड़ी आपकी टीम उतनी, आप कहते हैं ना, योर ड्रीम इनकम डिपेंड्स अपॉन योर टीम साइज। ओके, जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी इनकम। लेकिन दिक्कत क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का जब नाम आता है ना, तो लोग वहीं पर रुक जाते हैं, बोलते हैं ये मुझे नहीं करना है, या ऐसा मुझे नहीं, क्योंकि लोगों के गलत एक्सपीरियंसेस हुए रहते हैं गलत कंपनी में जुड़ के। लेकिन देखिए, बड़े बड़े लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बात करते हैं वो हमें समझना बहुत जरूरी है। और ये है बिल गेट्स। इन्होंने कहा है, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अब बिल गेट्स जैसे इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मैं कहूँगा भी ये कहते हैं कि उनको अगर चांस मिलता है वो नेटवर्क मार्केटिंग करते। ये है बिल क्लिंटन, अमेरिकन के एक्स प्रेसिडेंट। इन्होंने भी कहा है, योर इंडस्ट्री गिव्स अ चांस फॉर एवरीवन टू मेक मोस्ट ऑफ देयर लाइफ। आई थैंक यू फॉर कीपिंग इट स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपैंडिंग इट टू मिलियंस ऑफ पीपल। ये बिल गेट्स है, ये कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग।
लेकिन इनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है, इसीलिए ये ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। यह है टोनी ब्लेयर, यूके के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने भी कहा है नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल प्रोस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो इतने बड़े बड़े महानुभाव जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इस तरह की बात करते हैं तो हमें एक बार सोचना चाहिए जरूर, और सही कंपनी को चुनना जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ही जरिया है जो ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है, एक साधारण आदमी को असाधारण बना सकता है, जैसे मैं और कई लोग इसमें से बाहर आए हैं। और कुछ एक आपको बताना चाहूंगा, ये है बिजनेस इंडिया, ये कॉर्पोरेट की बहुत बड़ी मैगजीन है, ये 2018 जनवरी का एडिशन है, जिसमें लिखा है अगर द मैगजीन ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ओके। तो 2017 में जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया, उनके इंटरव्यूज है ऐसी ये बुक में, और देख सकते हैं कि आप, ये है आदि गोदरेज बियॉन्ड अ सोप ओपेरा, फिर मुकेश अंबानी, डोनाल्ड ट्रंप, कुमार मंगलम बिरला, सुनील मित्तल। और ऐसी बुक में मुझे ये कहते बहुत गर्व होता है कि फॉरएवर के एक डिस्ट्रीब्यूटर, वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर मैं कहूंगा, सूर्या सिन्हा जी का भी इंटरव्यू आया है, और इन्होंने उसमें कहा है नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। सोचिए, नेटवर्क मार्केटिंग अगर सही नहीं होता तो ऐसी मैगजीन में ऐसा कोई इंटरव्यू आता था? और वो भी इंटरव्यू आया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एक वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर का, साइमन सूर्या सिन्हा जी का, ओके। और इनके बारे में और कुछ छोटे से शॉर्ट में कहना चाहूंगा, क्योंकि जब बड़ी इनकम आना शुरू हो जाती है ना, कभी कभी एक लेवल के बाद इनकम मायने नहीं रखती है, लेकिन हम उसको कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सूर्या सिन्हा जी, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी लाइफ की बहुत शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा। ये कोलकाता से बम्बई आए थे, कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत कुछ मेहनत की, कुछ कर नहीं पाए। 3 बार तो कम से कम इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन हमारी खुशनसीबी कि ये बच गए, और फिर इनको फॉरएवर मिला, और फॉरएवर में इतना मेहनत की, इतनी अच्छी मेहनत की कि बहुत बड़े चेक्स, जैसे मैंने आपने देखा, 3,84,84 लाख का चेक इनको आया। और आज ये क्या कर रहे हैं, आज ये कोलकाता में बहुत सारे विलेजेस हैं, उसमें से वहां पर काफी सारी लड़कियां हैं जिनकी पेरेंट्स उनकी शादी नहीं करा सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे लोगों की मदद करते हैं उनके लड़कियों की शादी कराने। तो ये एक बहुत बड़ा नेक काम भी हम फॉरएवर से जो संपर्क कीजिए, बिल्कुल वेट मत कीजिए अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो, और तुरंत आप अपना लिंक मंगवाइए, वो लिंक को फिलअप कीजिए और इस फॉरएवर की दुनिया में ज्वाइन होके बड़ा पैसा कमाने की तरफ आप प्रस्थान कीजिए। मैं ऐसा करूंगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपको सब हेल्प करने को तैयार है, आपको सिर्फ एक कदम चलना है। आपके साथ हम 10 कदम चलने को तैयार है, लेकिन वो पहल आपको करनी है। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, ये सब आएगा, वो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको कुछ लाइफ में अलग करना है, तो वो आप कर सकते हैं। और फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी आपको, मुझे नहीं लगता कि और कहीं से आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं तो उसको 13 साल से कम देख रहा हूं कि कई लोगों की जिंदगियां, मेरी क्या, कई लोगों की जिंदगियां इसके वजह से बदल गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं रुकता हूं और फिर से मिस्टर साइमन डेविडसन को जी को इनवाइट करूंगा कि आप टेक ओवर कीजिए, या कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स, किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जयेश जी, सॉरी, आपका सेमिनार बहुत जबरदस्त था, क्योंकि मैंने आपको देखा है हाउ यू हैव अचीव्ड डिफरेंट लेवल्स, और आपका सेमिनार जबरदस्त था। तो मेरे को और एक 2-3 क्वेश्चंस है, वो जो मैं आपको पूछ लूंगा।
जो हमारा ऑडियंस, हमारी प्यारी ऑडियंस ने बताया। एक ने पूछा है, व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू न्यू ज्वाइनीज, मतलब जो पहले पहले नए नए ज्वाइन किए उनको ट्रायल के लिए, हाउ दे शुड ट्राई द फर्स्ट टाइम, उनका मैसेज क्या, नए लोग के लिए क्या मैसेज है आपका? ये क्वेश्चन आया कपिल जवी से। ये क्वेश्चन उनका, जैसा मैंने बोला है, नए लोग को क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशली फॉरएवर? नए लोगों को मैसेज सबसे पहले तो आपको ये देना है कि आपको ज्वाइन करके इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी। गड़बड़ कहाँ आती है कि हम ज्वाइन तो कर लेते हैं और तुरंत हम लोगों से बात करना शुरू कर देते, और फिर 4-5 लोगों ने मना कर दिया तो हम दूसरे दिन से हमारे स्पॉन्सर का फोन उठाना बंद कर देते। ये बहुत गलत बात है। देखिए, सबसे पहले आपको ही अभी तक पूरा नहीं समझा है, क्योंकि मैं 25 साल बिजनेस करने के बाद भी डे 1 को मुझे ये बिजनेस समझ में नहीं आया था क्लियर। लेकिन एक क्लियर था कि इसमें बड़ा पैसा मैं कमा सकता हूं, इसीलिए मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। लेकिन जैसे मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा था कि आपको अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। और बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे। देखिए, अगर आपके बेटे को या आपको खुद को या आपकी सिस्टर को या आपकी डॉटर को अगर इंजीनियर बनाना है तो आप किसको पूछेंगे? कोई मोबाइल रिपेयर करने वाला रहेगा आपके बिल्डिंग में, उसको पूछेंगे, या आप कोई इंजीनियर को ही पूछेंगे? आप ऑफकोर्स इंजीनियर को पूछेंगे। डॉक्टर बनाना है तो किसी डॉक्टर को पूछेंगे। तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में जब ये कंपनी के बारे में जब आपको पूछना है, जानना है, तो साइमन सर है, ऐसे लोगों की एडवाइस लीजिए, ऐसे लोगों को समझिए कि क्यों ये 20-20 साल से जुड़े हैं, क्यों हम 13-13 साल से इसमें जुड़े हुए हैं। अगर इसमें कुछ रहता ही नहीं तो हम जुड़ते ही क्यों? या फिर हम इधर से उधर डांस करते रहते अलग अलग कंपनी में जो बाकी लोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है, थोड़ा सा वक्त देना है, और ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा देखनी है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है, और कुछ प्रोडक्ट आपको यूज करना है ताकि वो प्रोडक्ट का पावर आपको पता चले। तो ये मैसेज है मेरा, फर्स्ट टाइम मैसेज। अच्छा, जो नए लोग है उनको कौन सा ट्रेनिंग वो देखने चाहिए? फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बीओपीपी, एनडीओ, आई मीन कौन सा ट्रेनिंग नए लोग को देखनी चाहिए और कितने टाइम देखनी चाहिए? देखिए, ट्रेनिंग्स जो है वो सीक्वेंस, कंपनी ने ये सिस्टम बनाया है। सबसे पहले आपको कंपनी का वापस, ये एक शॉर्ट वर्जन था मैंने आपको जो बताया अपॉर्चुनिटी का, डिटेल्ड वर्जन आपको दिखेगा बीओपीपी जिसको कहते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान प्रेजेंटेशन। उसके बाद में आपको देखना है एफबीओ ट्रेनिंग। एफबीओ यानी फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन, यानी आप कहीं भी जॉब में भी लगते हो तो आपका ओरिएंटेशन होता है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो यहां पर भी आपका वाई क्लियर होता है, वो एफबीओ ट्रेनिंग। उसके साथ साथ में आपको देखना है प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स, ताकि आपको पता चले कि क्या रेंज है हमारे पास प्रोडक्ट का और उसके फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है। और लास्ट में आपको देखना है मार्केटिंग प्लान, क्योंकि वो मैनेजर के बाद आपकी इनकम क्या होने वाली है वो उसको बताता है। और ये सब ट्रेनिंग्स मैं तो कहता हूं मिनिमम से मिनिमम आपको 5 बार देखना है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रिसर्च है कहते हैं, और मैंने सुना हुआ है, क्योंकि पहली बार आप जब देखते हो ना तो आप एक्साइट हो जाते हो, और एक्साइट हो जाते हो तो आप ज्वाइन कर लेते हो। दूसरी बार जब आप देखते हो ना तब आप अंडरस्टैंड करने लगते हो उसको। सिंपल एक्सप्लेन करूंगा, जब आप फिल्म देखते हो तो पहली बार एक्साइटमेंट में देखते हो, लेकिन सेकंड टाइम देखोगे ना तो आपको उसके डायलॉग्स भी याद आ जाएंगे। तो इसी तरह जब आप सेकंड टाइम देखोगे तो यू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, सॉरी, थर्ड टाइम जब आप वापस देखोगे तो यू अंडरस्टैंड बेटर। फोर्थ टाइम जब आप देखोगे तो आप मेमोराइज करोगे, यानी वो स्पीकर बोलने वाला रहेगा ना, ट्रेनर बोलेगा ना, उसके पहले आपको मालूम पड़ जाएगा कि अभी ये कौन सी स्लाइड आएगी और क्या बोलेगा। और 5वीं बार आप देखते हो ना तो आप इंटरनलाइज कर लेते हो। यानी हम लोगों को रात को 12 बजे भी पूछा कि मैनेजर को कितना सीसी चाहिए या ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो हम तुरंत आपको बता देंगे। ये सब इंटरनलाइज होता है। तो जितनी ज्यादा बार आप ये ट्रेनिंग्स करोगे, देखोगे ना, उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या है फॉरएवर। तो कम से कम, जैसे मैंने बोला, 5 बार आपको देखनी है ये ट्रेनिंग्स। यस, फैंटास्टिक। और एक क्वेश्चन आया है या कि मतलब दिस डिफरेंट क्वेश्चन व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड वाज, प्लीज एक्सप्लेन नेटवर्क मार्केटिंग। 1 मिनट के अंदर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग,
एक नेटवर्क मार्केटिंग ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना कि एक लाइन में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप किसी को भी पूछिए, जब आप फोन करते हैं ना, खास करके इसको एक्सप्लेन अलग तरीके से करें। जब आप फोन करते हैं ना किसी को भी और इनवाइट करते हैं, तो सबसे पहला सामने से क्वेश्चन आता है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? और उधर हमारी हवा निकल जाती है, अरे अभी इसको क्या बोलूं? तो ऐसे लोगों को सामने से पूछो, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं? दावे के साथ कह सकता हूं, एक लाइन से ज्यादा नहीं, वो लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है, लोगों की लाइफ चेंज करने वाला बिजनेस है। मैं कहता हूं, आप कितने लोगों के नेटवर्क में हैं ये आपको पता नहीं है। आप लिस्ट बनाएंगे ना तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि मैं कितने। आप मोबाइल कंपनीज के नेटवर्क में है, आप इलेक्ट्रिसिटी के जो आपके घर पे आती है उसके नेटवर्क में है, दूध वाला जो आपको दूध देता है उसके नेटवर्क में है। तो हम सबके नेटवर्क में है, और वो लोग नेटवर्क बना के करोड़ों रुपए लगा के पैसा कमा सकते हैं। तो हम बिना पैसे या एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके क्यों ना इतना बिजनेस, बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके जो वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो हमारे पास ये नेटवर्क मार्केटिंग है, या जिसको हम कहते हैं ये फ्रेंचाइजी सिस्टम भी इसको कह सकते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी सिस्टम में जहां पर करोड़ों रुपए लगते हैं, यहाँ पर करोड़ों रुपए नहीं लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो फ्रेंचाइजी में भी आप फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको वो ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सीखना पड़ता है, आपके स्टाफ को भी भेजना पड़ता है ट्रेनिंग्स के लिए। गड़बड़ क्या होती है, हम ट्रेनिंग्स मिस कर जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट कि मैं एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करूं। हाँ, इतना बोल सकता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ही ऐसा जरिया है जो ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है, और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है, अनलेस आपके पास एक बहुत बड़ी डिग्री है और ब्रेन आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आईक्यू लेवल आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो ही आप वो कर सकते हैं। थैंक यू, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। तो मैं और 2-3 क्वेश्चन है पर अभी लूंगा नहीं क्योंकि वी ऑलरेडी टाइम अप। गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग का जो पावर है, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है साइमन डेविडसन, उसमें 500 वीडियो है, 200-300 नहीं, 500 वीडियोस। आपको अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है मत करो, लेकिन वीडियो तो देखो उसके लिए क्या प्रॉब्लम है। तो यू शुड गो एंड यू हैव अ लुक। यस, मैं और एक मेरे को एक मोबाइल पे मैसेज आया कि आपका जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त है। ओके, so I would want you to come once again as a। अच्छा, जिसको आपको लगता है कि जयेश का प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी होने चाहिए, तो एक 1 टाइप कर देना, 1 आपके चैट बॉक्स में 1 टाइप करो, तो हम फिर वापस। अच्छा, एक का ही आया, मतलब शायद आपको बुलाने की जरूरत नहीं। अच्छा, आ रहे थोड़ा टाइम लगता है। ओके ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। कोमल, भारती वर्मा, दिनेश सालवी, अनिल पटेल, कोमल फर्नांडिस, अस्मा, उमा, प्रतिमेश, ज्योति भारती। अरे माय गॉड, अभी दिखता है पूरे सब लोग वही करने वाले। तो we'll invite you again and one more good anytime. Most probably on the 23rd onwards we are shifting this Zoom platform to 500 distributors. Okay. So the idea is आप कभी भी कोई ट्रेनिंग में आएंगे ना, प्लीज कम बिफोर टाइम। आप कोई पिक्चर में जाते हैं, पिक्चर के इंटरवल में नहीं जाते। आप कभी भी, और ये ट्रेनिंग है आपका पूरा लाइफ लॉन्ग इसमें आने वाला है, तो प्लीज डोंट मिस इट जस्ट बिकॉज इट्स फ्री। उसका वैल्यू रखो। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज फ्री मिलती है उसका वैल्यू नहीं रखते। तो वी हैव फंडेड। मनीष, थैंक्स, Jayesh, thanks a lot. We would want you to come again and maybe do a because in our products we have aloe vera, we have skin care, we have personal care, we have nutrition. तो हर हफ्ता एक एक टॉपिक रखेंगे and we'll do fantastic. Yeah. So my pleasure. Thanks a lot. It will be my pleasure, sir. Yeah. And thank you for inviting me, sir. Thank you. Thank you guys. Thanks a lot. Thanks सब लोग के लिए, thank you. बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है. Be safe and let's rock the show together. Thank you. Yeah, thank you.